Are you tired of learning new English words just to forget them after a few days? If yes, then you are not alone. We are just like you. We also keep on forgetting words and keep on learning new words. Right? So that's the positive thing that we keep on learning new words. So today in this video, we are going to share super tricks to learn new vocabularies and to retain them forever. So yes, this is Sunita Rawat and this is Shivan Rawat. Say hello. Hello. And we welcome you to our channel Sunita's English Adventure. I hope you all are doing great. We are superb today. And the weather is also so stunning. You can see the view in the backsides. Isn't it so superb, so stunning? What do you think, Shivan? Yes. It's nice, no? It's beautiful. Yes. Okay. So let's ask Shivan, how did he learn words? How did he learn English? Shivan, can you tell us how did you learn English? In school. In school? How? YouTube. Like, do you watch cartoons? Do you watch movies? That all the things. You do all the things? राइट सो आप मूवीज देखते हो, आप कार्टून्स देखते हो, आप मम्मा को भी सुनते हो, राइट, एंड देन आप ऑब्जर्व करते हो और वहां से सीखते हो एंड देन आप भी मम्मा को कॉपी करते हो ना. इज दैट ट्रू? Yes. That's true. So this is how he has learned English. You know, kids observe their surrounding, how people talk, and they just imitate them. So this is one of the best ways by which you can learn new words in context. Okay, so by your surrounding, जो भी आप लोगों को आसपास इंग्लिश लोग बोलते हैं, तो उनको कॉपी करो. जो आप अपने अपनी वर्चुअल वर्ल्ड बना रखा है, आर्टिफिशियल वर्ल्ड बना रखा है इंग्लिश लर्निंग के लिए, उनको पता चल गया पापा को. उनको रहने दो ना. तो जो आपने अपना वर्चुअल वर्ल्ड बना रखा है इंग्लिश लर्निंग के लिए, सो वहां पे जो भी आप देखते हो, इंग्लिश के वर्ड्स सुनते हो, राइट, इंग्लिश के सेंटेंसेस सुनते हो, या जो भी आपको अच्छा लगता है, जस्ट कॉपी देम, जस्ट इमिटेट देम. ओके. शैडोइंग प्रैक्टिस का नाम तो सुना ही होगा आपने. सो व्हाट डू वी डू इन शैडोइंग? वी जस्ट इमिटेट पीपल, वी जस्ट इमिटेट एनी ऑफ द फ्लुएंट स्पीकर्स, राइट. सो उनको वैसा का वैसा, वैसा ही इंटोनेशन, वैसे ही वॉइस मॉड्यूलेशन, सेम टू सेम सेंटेंसेस आपको कॉपी करना है. सो शैडोइंग टेक्निक से ही, इमिटेशन टेक्निक से ही आप सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन या फिर इंटोनेशन नहीं सीखते हो, आप वोकैबुलरीज, न्यू फ्रेजेस, सब चीजें सीख जाते हो, राइट. सो इट्स द बेस्ट टेक्निक इफ यू आस्क मी. सो शैडोइंग इज वन ऑफ दोज. एंड learn vocabularies in context. Don't just memorize the meaning. For example, when you come across any new word, let's say exhilarating. So I learned this word, I heard this word somewhere. Now I'll not just memorize its meaning. That is very exciting. So sirf meaning learn nahi karna hai. Don't just memorize or cram or mug up meanings. It is not going to help you. आपको क्या करना है, इसको कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है. एंड किस कॉन्टेक्स्ट में? अपने रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपको यूज करना है. आपको एक सिचुएशन इमेजिन करनी है जहाँ पे आप इसको एक्चुअली यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस से, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू यूज इट इन अ सेंटेंस, देन आई कैन से my friend's birthday party was an exhilarating experience. That means it was an exciting experience. So I've used this in real life scenario. ठीक है, ऐसी कहीं से भी सेंटेंसेस नहीं लेने हैं, या फिर चैट जीपीटी से आपने सेंटेंसेस ले लिए या गूगल से ले लिए, बट वो आप कभी यूज ही नहीं कर पाओगे, तो क्या फायदा. सो आपको कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंसेस बनाने हैं, वट एवर न्यू वर्ड्स यू आर लर्निंग. सो जैसे एक्सिलरेटिंग लर्न किया, तो इसके लिए आप 2-3 सेंटेंसेस बनाओ अपने आप से, और जो कि आप अपने एवरीडे लाइफ में यूज कर सको. इट्स एक्सिलरेटिंग टू अचीव योर गोल्स, राइट. लेट्स सपोज यू हर्ड समवन से, wow, what a spectacular view. So just pause and repeat it 3 times. Wow, what a spectacular view. So this is how you're learning things when you repeat. So repetition is the key. When you repeat, you're able to retain those words for a longer time. Yes, you want to say something? Yeah. Hello, say hello. Hello. What's your name? Rudraksh. Ruddu Rudraksh. Great, nice to meet you. Okay. So another very nice technique is 3 into 3. That means whenever you come across any new word, just write it down
and make 3 sentences and repeat those sentences 3 times each. So again, you're repeating things, you're revising things, revisiting. So this is how you are learning. Now this is something I also do. I do vocabulary journaling. I have a notebook with me, और उस नोटबुक में मैं जितने भी वर्ड्स लर्न करती हूँ, जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, लाइक जब भी मैं मूवीज़ देखती हूँ या यूट्यूब में कोई भी वीडियोस देखती हूँ या पॉडकास्ट सुनती हूँ, सो मेरे पास हमेशा एक नोटबुक रहती है, पेन रहता है. आई डू इट एक्टिवली, आई डू एक्टिव लर्निंग. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बेड पे लेट के टाइम पास के लिए मूवीज देख रही हूँ, बट आई डू दैट फॉर लर्निंग पर्पस. राइट. सो जब भी आप मूवी देख रहे हो या फिर कोई वीडियो देख रहे हो फॉर दैट मैटर, तो आपको जो भी इंटरेस्टिंग वर्ड लगता है, जस्ट नोट इट डाउन इन दैट diary or notebook, and once you're done with the video, then search its meaning and make 3 sentences, as I already told you, right? So maintain a journal for this. ऐसे करके you can make columns, word with its meaning, and then in next one you can say example related to that word, and in the last column you can say synonyms and antonyms. So you have to maintain a diary. I have also maintained the diary. I'll just add the picture here. You can see that and you can get a reference from this picture. Okay, so start doing this. It will be very helpful for you to revisit, to revise, because अगर आप ऐसे ही words याद करते रहोगे, भूलते रहोगे, आपके पास तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है. सो रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, ताकि जब भी कभी आपको लगे कि यार वो क्या वर्ड था, बहुत ही अच्छा था, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, तो आप अपनी डायरी के पेजेस पलटो एंड देयर इज योर वर्ड. राइट. सो वहां से आप रिवाइज कर लोगे. सो रिकॉर्ड करना एक बहुत ही अच्छा मेथड है. सो ट्राई टू make your personal dictionary in which you will have all your favorite words, right? So you anytime you can visit all those words. So this is something very interesting. And देखो, लोगों को एक ये मिथ रहता है कि हमने जो लर्न कर लिया वो हमें रिटेन करना ही चाहिए, हम क्यों भूल गए. लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. They keep contemplating about it, that why did we forget this word, it should have been in my memory for a good time, but you're not able to do so. And it's so natural, we are humans, right? और भूलना बहुत ही नेचुरल चीज़ है. अब जैसे मैं भी वर्ड्स लर्न करती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करते रहते हैं, भूलते रहते हैं. इट्स सो नेचुरल. हम उसी पे नहीं बैठ सकते. वी कांट गेट स्टक एट दैट पर्टिकुलर वर्ड और एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एक्सपीरियंस. वी हैव टू मूव ऑन, राइट? सो क्या करना है, वर्ड्स भूल जाते हो, कोई बात नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है. जस्ट कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन प्रोग्रेसिंग. ऑलराइट. आपको क्या करना है कि आपको कंटिन्यू अपने आप को इंग्लिश कंटेंट से एक्सपोज करना है. ओके. मूवीज देखते रहो डे टू डे बेसिस पे, वीडियोस देखते रहो, वट एवर यू लाइक, पॉडकास्ट देखो, रीडिंग करो, जो भी आप करते हो. राइट. सो जब आप अपने आप को कंटिन्यूसली एक्सपोज करते रहते हो इंग्लिश कंटेंट से, तो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ वर्ड्स होंगे जो कि आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो. आपको कभी भी एम्प्टी महसूस नहीं होगा. राइट. आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आई एम फीलिंग लॉस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज आपके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव रहेगा उस जगह पे यूज करने के लिए स्पॉन्टेनियसली. राइट. अब जैसे ब्यूटीफुल है, सो अब मैं ब्यूटीफुल वर्ड पे नहीं अटक सकती ना कि मुझे वर्ड क्यों याद नहीं आ रहा. बट अगर समझ लो मैंने उसके 4 और सिनोनिम्स लर्न कर लिए, तो जो भी मेरे पास स्पॉन्टेनियसली आ रहा है मैं वो यूज कर सकती हूँ. राइट. इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग स्टक. तो ये चीज करनी है, ज्यादा सोचना नहीं है जो भूल गए उसके बारे में. रिकॉर्ड रहेगा तो आप रिवाइज कर सकते हो और फिर किसी कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकते हो. बट आपको कंटिन्यू एक्सपोज करना है खुद को, ताकि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए रहेगा. एंड दिस इज समथिंग दैट आई डू, दैट आई प्रैक्टिस. ठीक है. तो मैं भी ऐसे ज्यादा सोचती नहीं हूँ कि मैं भूल गई एंड ऑल दैट. आई डोंट पॉन्डर ऑन ऑल दीज थिंग्स. आई जस्ट कीप ऑन लर्निंग. सो हमेशा मेरे पास वर्ड्स रहते ही हैं, कुछ ना कुछ रहता ही है टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. तो आपको भी यही करना है एंड आई सजेस्ट कि आप भी यही करो. ज़्यादा सोचो मत जो भूल गए उसके बारे में. ऑलराइट. एंड यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट यू कैन क्विज योर सेल्फ. जैसे आपको याद होगा कि जब हम स्कूल टाइम्स में हम क्या करते थे कि हमारी मम्मी या फिर पापा या जो भी आपको पढ़ाते थे, स्टडीज़ में आपकी हेल्प करते थे, तो वो हमसे क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछते थे कि हमें कितना लर्न हो गया, और जो हमें लर्न नहीं हुआ रहता था उसे रिवाइज करने के लिए बोलते थे एंड लर्न करके फिर से पूछते थे. सो ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है. जब आप वर्ड्स के जो भी आपके न्यू वोकैबुलरीज है उनका रिकॉर्ड रखते हो, किसी को बोल लो कि मुझसे पूछो कि मुझे कितना याद है, कौन से वर्ड्स. जैसे डेफिनेशन, वो आपको ऐसा कर सकते हैं कि वो आपको डेफिनेशन दे सकते हैं एंड देन यू हैव टू रिकॉल द वर्ड.
तो इससे आपको पता चलेगा आपको कितने वर्ड्स याद हैं और कितने पे आपको वर्क करना है। तो जो याद नहीं होंगे उनको अलग रखो, उनको हाईलाइट कर दो एंड फिर उनको भी लर्न करो, राइट? सो इट्स अ गुड वे एंड यू फील मोटिवेटेड ऑल्सो कि हाँ मुझे इतने वर्ड्स याद हो गए हैं। एंड फिर आप ना, क्योंकि रेपिटेशन भी हो ही रहा है तो आपकी मेमोरी में भी वो काफ़ी टाइम के लिए रहता है। सो ये क्विज भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। देन फॉरेनर्स फ्लैश कार्ड का भी यूज़ करते हैं, तो वो फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, उसमें वर्ड्स लिखते हैं, पीछे उसका मीनिंग लिख देते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जितना भी उसको भर सकते हैं, एंड देन दे यूज़ फ्लैश कार्ड्स। तो ये भी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि फ्लैश कार्ड्स कैसे बना सकते हैं, बहुत ईजी है, घर पे भी बना सकते हो। सो वोकैबुलरी के लिए भी आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हो। सिंपली किसी को आपको बोलना है या खुद को आप खुद ही यूज़ कर सकते हो कि ये वर्ड है, एक तरफ आपने वर्ड लिखा है, पीछे मीनिंग लिखा है, ठीक है? तो जस्ट क्विज योरसेल्फ, अपना टेस्ट लो, कितने याद हो गए उसको साइड में रखो, जितने याद नहीं हुए उसको अलग साइड में रखो, एंड देन जो याद नहीं हुए उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है? और देखो, जब आप वर्ड्स को विजुअल्स से कनेक्ट करते हो या किसी एक्सपीरियंस या इमोशन से कनेक्ट करते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हो और बहुत टाइम तक उसको याद रख पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्ड लर्न कर रही हूँ ब्लिंक, ठीक है, तो अब मैं ऐसे ब्लिंक करके मैं उसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ इस एक्शन को हम कहते हैं ब्लिंक, तो मैंने इसको एक एक्शन से जोड़ दिया। तो ऐसे भी मैं सिंपली, अगर मैं सिंपली ब्लिंक बोलूंगी तो शायद मुझे याद नहीं होगा कि एक्चुअली ब्लिंक बोलते किसको हैं, बट जब मैंने वो एक्शन करके देखा, आंखों को झपका के देखा ब्लिंक, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, ब्लिंक। ऑलराइट, सो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, जब आप विजुअल्स, आप जैसे पिक्चर्स देखते हो ना, इंटरनेट से आप पिक्चर्स ले सकते हो, या फिर इंटरनेट में बहुत सारे पिक्चर्स भी अवेलेबल होंगे जहाँ पे पिक्चर के साथ, विजुअल के साथ उसका मीनिंग लिखा होगा या उसका वर्ड लिखा होगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। जैसे कि फ्राउन, फ्राउन जो हम अपने ये इसको एकदम ऐसे गुस्से में देखते हैं ना, फ्राउन, या फिर चिड़चिड़ा होके देखते हैं, एग्जैक्टली नॉट दिस, ओके। सो जैसे कि अगर मैं एक दूसरा वर्ड लूँ स्वेयर, तो आपके पास एक पिक्चर है जिसमें वो ऐसे कर रहे हैं, स्वेयर, दे आर स्वेयरिंग, कसम खा रहे हैं, राइट? सो आप उस पिक्चर को देखोगे एंड देन उस वर्ड को पढ़ोगे स्वेयर, तो आपको वो याद रहेगा क्योंकि आप उसको पिक्चर से रिलेट कर पा रहे हो, राइट? सो विजुअलाइजेशन भी बहुत हेल्प करता है, विजुअल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप किसी एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्लूमी, सो अब मैं अपना, ग्लूमी का मीनिंग होता है वेरी सैड, तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस याद कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा सैड थे, एंड इस वर्ड को उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ करो, लाइक when I left my job I felt so gloomy। so मैंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस में इस वर्ड को यूज़ कर लिया, एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर लिया। so this is how you remember it for a good time। so yes, these were the super tricks that I just shared with you and I hope that you found it helpful। so for this little effort of mine, please don't forget to like, share and subscribe to my channel। Okay, Shivani, you want to say something? No. Say thank you to everyone. Oh my god. What was it? So yes, thank you so much for watching again and we'll see you soon in another video. Till then, stay tuned and keep watching our conversational videos. Thank you so much again.